Okay, so welcome back all of you, and today I have planned that I'll be touching with you direct question essays. Okay, direct question essay is no different from the problem solution essay. It is just like that. Just like two questions are asked, and you have to tell the examiner that you are going to answer those two questions, one question or two questions in the essay. In the introduction, you have to tell the examiner that you are answering those questions. You will be addressing those questions in the essay. Okay, so that is how you have to deal with it. Got it? ये समझ आ गया? अब ये वाला essay देखो, ये essay है, this is a problem solution essay. Many people believe that today there is a general increase in the antisocial behavior and lack of respect for others. बहुत लोग मानते हैं कि आज antisocial behavior में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गया. Antisocial means which is against the society, which is unethical, which is immoral behavior, and lack of respect for others, और दूसरों के लिए respect भी कम हो गई है. What might have caused this situation? How to improve it? Now, this is a problem solution essay. This essay can also be asked in another way. Just look at this question here. This is a similar essay. Okay. Nowadays, some individuals behave in an anti-society way, such as, अब इसमें उन्होंने such as committing a crime, मतलब crime commit करना भी anti-social behavior हो गया. आप समझ आ गया anti-social behavior का मतलब? ठीक है? In general, it is the society to blame. अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये society है blame करने के लिए. Society, समाज ही इसको blame, समाज ही इसका culprit है ऐसे behavior का. अब इन्होंने question दो पूछे हैं. What causes the antisocial behavior? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले ऐसे में भी तो रीजंस कॉजेज ही पूछते हैं, वो भी ऐसे ही होता है. ठीक है. So what causes the antisocial behavior? एक ये क्वेश्चन है. And who should be responsible for dealing with it? अब इन्होंने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे का टच दे दिया है यहाँ पे. बिल्कुल वही ऐसे है जो ऊपर है प्रॉब्लम सॉल्यूशन. इट इज जस्ट ए सिमिलर ऐसे. तो मैंने अभी अपने बुक में ये वाला ऐसे था, मैंने इसको निकाल दिया. मैंने सोचा इसी के नीचे लिख देती हूँ that this is basically the same essay. Okay, just 1 second, give me 1 second. Okay, so this is the same essay. मैं नु cross out कीता सी that I will not be writing on it because this is also this is basically it is the same essay. So now what I'm going to do is I'm going to do this essay with you and you will know how to write it. Okay, this is a direct question essay. एंड इसका मैं ये हटा देती हूँ. इसको ये वैसे भी ऐसे इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं था, पुराना लिखा हुआ था. So I'll be just doing it, changing it all together. Okay. So ये वाला ऐसे हमने करा. This is there in the book at 277 number. That direct question essay, this is a problem solution essay. That direct question essay is there at 278 number. Okay. Now that direct question essay, बाकी सारा कुछ सेम आना है जो इस essay में है. Okay. Only the introduction and the conclusion will change a bit, and you will be handling a direct question essay. You get my point? Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. अब इस ऐसे को पूरा पढ़ लो और फिर हम उसको चेंज करेंगे उस ऐसे को. ठीक है. It is a fact that in the midst of vast progress in every field of life, there is also a growth in the antisocial behavior and people have become less respectful of each other. This essay intends to analyze some causes of this phenomenon and suggest some ways to ameliorate the situation. Okay, just give me 1 second. I'm going to do something to it.
My cursor stops working somehow because okay. Now we have to change this introduction to suit this direct question essay. So you will be helping me in that. Nowadays, some individuals behave in an anti-society way, such as committing a crime. Okay, so ये तो वैसे भी इसके साथ भी जच रहा है. It is a fact that in the midst of vast progress in every field of life, there is also a growth in the antisocial behavior, and people have become less respectful of each other. Okay. This essay intends to analyze some causes of this behavior. ये भी चल रहा है this phenomenon, क्योंकि यहाँ causes मांगे हुए हैं. Who should be responsible? यहाँ पे full stop डाल दो और आगे आपने देना who should be responsible. तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमने क्या solutions के बारे में क्या लिखा है. People themselves, and next what? Who else should be responsible? Media, the people themselves, the media and the government. So government and the people them can deal with. Who should be responsible? Here you can say, I believe some steps can be taken by the government and the people themselves to address this situation. ठीक है. अब मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये चेंज करा और मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन का हिस्से का इंट्रोडक्शन बन गई. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डायरेक्ट क्वेश्चन से बच्चे कहते हैं मैम डायरेक्ट क्वेश्चन का भी टेम्पलेट कराओ, स्केलेटन कराओ. कुछ डिफरेंट है ही नहीं, स्केलेटन कुछ है ही नहीं है उसका डिफरेंट. यू गेट माय पॉइंट. डायरेक्ट क्वेश्चन तो हार्डली आपको 10 टोटल नहीं मिलेंगे पूरी 400 एस्से की बुक में, बिकॉज दे आर सिमिलर टू द प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेस. ये अब समझ आ गया मुझे? प्लीज यस या कोई हैंड रेज करके या कुछ करके दो कि आप समझ रहे हो, क्लास में हो आप. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ओके फाइन. देन फिर अब रीजंस मांगे हैं तो ये दो पहले तो बिल्कुल सेम रहेंगे. द मेन रीजन बिहाइंड द एंटी सोशल बिहेवियर इज दैट पीपल हैव बिकम टू engrossed in making money. Most people have more than enough wealth, comfort and freedom, but their hearts desire even more. To satisfy their heart's greed, they have become workaholics and as a result have become selfish, isolated and indifferent. Secondly, even though people are connected to everybody through telephone lines and internet, the warmth of relationships has taken a backseat as face-to-face interaction has come down. Another big cause of this phenomenon is the changing family structure. Earlier, people lived in joint families and the grandparents were there to supervise the children. Now there are nuclear families and children are left unattended in the hands of pervasive media like the TV and the internet. No one monitors what they watch and they see the programs full of violence and crime, which makes them antisocial. The pressure of consumerist society and peers also breeds antisocial behavior as young people resort to petty crime to get the things they desire. तो यहाँ crime की बात भी आ गई इसमें. ये समझ आ गया आपको? अब यहाँ पे मैंने शुरू करा देयर आर मेनी सॉल्यूशंस. इसको आप चेंज कर दो जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने ऊपर लिखा है. ये फर्स्ट लाइन हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे, बाकी सारा मैटर वही रहेगा. आई बिलीव सम स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल देमसेल्व्स टू एड्रेस दिस सिचुएशन. यू कैन से this situation can be addressed with the joint efforts of the government and the people themselves. ठीक है? ये क्या हो गया? Okay, this situation
this situation can be tackled. आपने addressed word ऊपर लिख दिया, tackled with the joint efforts of the government, the people. To begin with, people have to learn to strike a balance between work and family life. They should revert. अब people बार-बार आ रहे हैं यहाँ पे दे कर देती हूँ. They should revert to the back नहीं आएगा. Old joint family system. This would be in the benefit of all. The children would learn moral values and the elderly would be well looked after. Negative effects of excessive consumerism should be taught to the people. Government can take the help of the media to aware the people. यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं. Government can take the help of the media to aware youngsters. youngsters कर दो. Aware the youngsters against youngsters against Unaccepted behavior. Against the harms of consumerism. मैम अलग जगह पे टाइप हो रहा है. हाँ हाँ against the harms of consumerism. Materialism कर दो. Consumerism word एक बार आ गया, अब materialism कर दो. ठीक है. Media can also play, यहाँ पे फिर media मैंने पहले लिख दिया. Media can also play a big role in highlighting the good points of the traditional and the Western culture, so that people can adopt good social values. Neighborhood associations should be set up to connect. नहीं इतना नहीं, नेट बंद हो जाना है. ठीक है. So this is it. So this is how you can. It is. अब आपको समझ आ गया कि it is the same essay. Direct question में कुछ ज़्यादा difference नहीं है. Is that okay? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. We'll see some other direct question essays also. Okay. मैंने आपके साथ ये करा है, पर मैं बुक में से as it is ये वाला essay omit कर रही हूँ because same बिल्कुल same है, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों essays में. It is just unnecessary adding to the number of essays. पहले ही बच्चों को 400 कुछ essays सुन के कुछ हो जाता है. इतनी बड़ी बुक कैसे करेंगे? ओके. नेक्स्ट जो है जनरल क्वेश्चन, नेक्स्ट जो essay है जो डायरेक्ट क्वेश्चन essay है वो है ये वाला. In most of the societies, the role of mother and father differs. What are the causes of this difference? What will be the parental roles? अब ये solutions नहीं है, सिर्फ एक question है. जैसे अभी मैंने आपको question कराया है कैसे, तो उसमें ये पूछा है, आपने इसका जवाब दे देना है. The parental roles जो है वो different होंगे, ऐसा लिख दो बस intro में, और एक पैरा बना दो फ्यूचर में parental roles कैसे होंगे. फ्यूचर में parental roles आप क्या बोल सकते हो, आपके मन में क्या आ रहा है, क्या लिखोगे, ये सोचो. मदर एंड फादर बोथ विल बी वर्किंग ना, तो घर के कामों में भी फादर्स विल डू इक्वल वर्क, ये लिख दो. एंड देन यू कैन आल्सो राइट दैट ब्रेड अर्नर वन नहीं होगा, फैमिली का दोनों होंगे. बच्चों की केयर दोनों मिलके करेंगे. इट विल नॉट बी कि जो स्टीरियोटाइप्ड रोल्स ऑफ विमेन है कि बच्चे को नहलाना सिर्फ माँ ने है, खाना सिर्फ माँ ने बनाना है, वही खिलाएगी, वो सब चेंज हो जाएगा. इस तरह की बातें लिख सकते हो ना पेरेंटल रोल्स की. बोथ विल बी इक्वली सपोर्टिंग द चिल्ड्रन. ठीक है. Yes. ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो गया है. ठीक है. Yes. Yes. So parents understand, work equally for the holistic development. They will work equally for the holistic development of child. ठीक है. Parents will plan things for the bright and shiny. हाँ, ये भी कह सकते हो कि जो parents है and से शुरू कर दिया है, ये and से नहीं शुरू करना, यहाँ से कॉमा डाल के
फिर एंड को मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है. And they will be united and the child will not be deprived of the father's love. Both will work so that they can do savings in the future for child. Savings for the future for their child. ठीक है. Okay. And तो ये सब है. Presently कई जगह पे ऐसा ऑलरेडी शुरू हो चुका है. यू कैन राइट लाइक दैट. इज इट इजी? आपको आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन वाला वो पॉइंट था माइंड में, वो क्लियर हो गया, क्लैरिटी हो गई. नथिंग डिफिकल्ट इन दैट. ओके. Another essay for the direct question that I've sorted out for today. ऐसे की एक बार इंट्रो पढ़ाना. ओके. फैमिलीज आर द बिल्डिंग. ये पुरानी लिखी है मैं, ये मेरी एक स्टूडेंट को आया था एक्चुअली ऐसे, और वो बहुत लंबा लिख के आई थी. शी गॉट 7.5. शी हैड वेरी गुड लेवल ऑफ इंग्लिश. तो अभी हम इतना लंबा एडवोकेट नहीं करते, मैंने उसी का ऐसे लिख दिया. सो वी कैन चेंज दिस विद योर हेल्प. Families are the building blocks of the society. Parents play an incredible, crucial and indispensable role for the development of children. Fathers and mothers both have individuality and are equally responsible for the growth of the child physically, mentally and emotionally. But still most of the societies have a different thinking that their roles differ. That their role differs. So here I would like to discuss the reasons of these differences and also discuss, isko change kar dete hain. Okay. So how will you write the introduction as of what we tell you now how to write it? So it is true that it is true that, true or irrefutable that, you can say it is true that in most of the societies in मैम इसमें पहले कॉजेज बताने हैं ना, उसके बाद मैम हाँ कॉजेज तो बताने हैं, उसके बाद हमने पेरेंटल रोल्स की एक लाइन बनानी है बस. दैट इज इट. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है. दैट इन मेनी नेशंस the part played by both parents in the upbringing of children. क्योंकि मदर एंड फादर की बात हुई है ना, तो मदर एंड फादर को चिल्ड्रन से ही रिलेट करके मैं सेंटेंस बना रही हूँ. इन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन is of upbringing of children is different. This essay, in this essay I will, ये जब कोई नया स्टूडेंट आता है ना, मेरी यहाँ से बंद हो जाती है. In this essay I will analyze the causes of these differences. The role of both parents. Okay, role of mother and father कर देती हूँ. Both parents मैं पहले यूज कर चुकी हूँ. The mother and father in the times to come will also be discussed. अब आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आपने ऐसे में क्या डालना है. This is a good introduction. ठीक है. ये आप समझ आ गई आपको इंट्रोडक्शन? यस मैम. दिस इज द लेटेस्ट. ये मेथड है जो अब हम यूज कर रहे हैं एंड दिस इज वेरी इजी. इजी लग रहा है ना आपको? ये मेथड से आप लिख सकते हो कुछ भी, किसी भी ऐसे को हैंडल करना. जब मैं बच्चों को बोलती हूँ ना आपको ऐसे हैंडलिंग आ जाए, तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो. अब बुक में इतने ऐसे थे. लास्ट ईयर इंद्रुप ने ये नए मेथड बनाए कि ऐसे ही लिखवाना है, ऐसे ही करना है. तो वी चेंज क्वाइट अ फ्यू एसेज बिफोर द नेक्स्ट एडिशन हैड टू बी प्रिंटेड.
and we could not delete the essays, so we left them कि अगली बार तक बाकी कर देंगे. So इस साथ साथ मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ ये, ठीक है? So this has been changed now and it has been made in in accordance with the latest method that we are adopting. 2 sentence, at the most 3 sentence intro and 1 sentence conclusion. Okay. See, to conclude, there are many reasons for the gender differences. अब देखो gender differences कर दिया यहाँ पे word in parental roles, but the future is predicted to hold no such differences. पर future में कोई ऐसे differences नहीं होंगे. ये मैंने वही चीज लिखी है ना conclusion में जो मांगी हुई थी ऐसे के साथ जो मैच कर रही है. This is it. Okay. और यहाँ पे however in the future the scenario will change. तो यहाँ से examiner को पता चल रहा है future की बात होने वाली है. Yes, ma'am. तो इससे पता चल रहा है कि एग्जाम आपका ये टॉपिक सेंटेंस अच्छा है. इट इज टेलिंग द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर. ओके मैम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ड्यूटी ऑफ द बोथ द पेरेंट्स इन नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड, ऐसा. हाँ बिल्कुल, विल बी द सेम इन द फ्यूचर, आप लिख सकते हो. ठीक yes. है. हाँ आपको समझ आ गया ना, हैंडलिंग की Yes, बात ma'am. है. आपको बेसिकली यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, जो ये जो नए मेथड्स हैं ये बहुत इजी हैं. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे ना, ऐसे ऐसे हैंडल कर दोगे, आपका अच्छा बैंड स्कोर आ जाएगा, रीजनेबली गुड. ओके मैम ये Ma'am, प्रॉब्लम सॉल्यूशन जैसे चलेगा या एक जना एट ए टाइम पूछो. जो भी आप पूछो क्वेश्चन पहले. मैम ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन जैसे एसेस इस टाइप के चलेंगे. हाँ मैं बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन में उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन डालती हूँ. मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन एक नए तरह का ऐसे है ही नहीं. इट इज द सेम एज द प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. यस मैम बिल्कुल different नहीं है ना? इट इज लुकिंग एग्जैक्टली द सेम. It बस is the लैंग्वेज same. बदली हुई है. It's only thing that you have to change कि क्वेश्चन जो पूछा गया उसके वे में आंसर दे दो इंट्रो में. I'll discuss the solution. Solution थोड़ी डिस्कस करोगे, solution थोड़ी है. पेरेंटल रोल्स ऑफ फ्यूचर पूछे हैं, वो लिख दो बस solutions की जगह पे. ठीक है, कुछ बदलनी है. समझ आ गया ना? यस मैम. यस. हाँ. अच्छा नेक्स्ट ऐसे है, एक और ऐसे है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है. मैंने निकालने की कोशिश करी है थोड़े से. मैंने कहा बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन का जो मन में एक पता है, एक मन में कीड़ा बैठा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा, वो आ गया तो क्या करेंगे, वो खराब हो जाएगा काम. ठीक है, ये देखो. Figures show that some countries have an ever increasing proportion of the population who are aged 15 or younger. अच्छा मैंने जो आपको पहला ऐसे कराया ना एंटी सोशल वे का, वो अभी रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन भी है. ओके अभी 1-2 महीने पहले आया एग्जाम में. Okay. Figures show that in some countries have an ever increasing proportion of the population who are aged 15 or younger. आपने ऐसे करा था कि बूढ़ों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी आने वाले समय. ठीक है, अब ये ऐसे है कि 15 या 15 से कम उम्र वाले बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है कुछ कंट्रीज में. ठीक है, अब उन्होंने इसके कारण नहीं पूछे, आप इसके कारण मत लिखने लग जाना. समझ गए क्या पूछा है? आप देखो, what do you think are the current and future effects of this trend for those countries? इन्होंने current and future effects पूछे. current कौन से होते हैं? अभी के, और future होते हैं आने वाले. समझ आ गया इससे? यस मैम. हाँ, ये causes नहीं लिखने लग जाना कि क्यों 15 साल से छोटे वाले बढ़ रहे हैं. ओके उन्होंने आपको एक फैक्ट दिया है और उस फैक्ट के रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे. ओके अब इसकी इंट्रोडक्शन देखो कैसे लिखी है. Some demographic surveys have shown that the proportions of young people are rising rapidly. This may be because of any reasons. किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि illiteracy and poverty or wars or any other reasons. This essay shall delve into the immediate and long term. अब this essay, ये essay क्या लिखने वाला है? Immediate and long term outcomes of this trend on those countries. तो मैंने ये वाली लाइन बीच वाली जो है ना, ये हटा भी सकते हो. ओके ये हटा भी सकते हो. इसको हटाने से और बेटर हो जाएगा, कंफ्यूजन ही कम हो जाएगी. अब ठीक है, इससे 2 सेंटेंस की इंट्रोडक्शन बन गई. That confusion I've removed, which I had created by writing 1 extra line. Okay, there is no need of that. Is this introduction clear? Some demographic surveys have shown. Demographic surveys क्या होते हैं? आपको कोई भी ऐसे, ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है, ओल्ड पीपल एसेज में भी यूज होगा. तो ये डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन.
डेमोग्राफिक सर्वेज है पॉपुलेशन के सर्वेज। समझ आ गया? डेमोग्राफी क्या होती है? जैसे ज्योग्राफी होती है स्टडी ऑफ द अर्थ एंड यू नो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसे ही डेमोग्राफी होती है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है? Some demographic surveys have shown that the proportions of young people are rising rapidly, कि young people की proportion rise कर रही है rapidly in some nations. Some demographic surveys of some nations have shown that, ये change कर दो, demographic surveys of some nations have shown that the proportion of young people are rising rapidly. This essay shall delve into the immediate and long-term outcomes of this trend on those countries. Intro clear hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सब पहले पैरे में मैंने क्या लिखा है? The most important current impact of this trend will be on the. अब ये स्लाइड को पढ़ के पता चल रहा है मैं क्या लिखने वाली हूँ इस ऐसे में? Effects. Yes, ma'am. Current effects. Current impact. Okay. The most important current impact इकोनॉमी पे जाएगा, क्योंकि यंग पीपल ज्यादा है और 15 साल से छोटे ज्यादा है, तो 15 साल से छोटे को तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर। ठीक है? फॉर इंस्टेंस गुड्स एंड सर्विसेज वुड नीड टू बी इम्पोर्टेड, गुड्स भी बाहर से, चीजें भी बाहर से मंगानी पड़ेंगी, और सर्विसेज का क्या मतलब है? टीचर, डॉक्टर बाहर से लाने पड़ेंगे, और इसके साथ क्या होएगी? इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ बाहर से लाना पड़ेगा तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। ठीक है? In addition to the effects on economy, there would be social implications also. तो social implications भी होंगी, young people ज्यादा हो जाएंगे तो। Young people के पास lots of energy है, उनके पास बहुत energy है, which must be channelized in the right direction, or it would lead to crime and violence. Government will have to invest a lot on educational institutes, as more children need more schools and colleges. In addition, more spending on health would also be needed. तो ये सारा मैंने current impact दे दिया, ये समझ आ गया आपको? Ma'am, what is the meaning of social implications in this? Social implication society पे देखो ना, crime बढ़ जाएगा अगर उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करा, अगर उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी तो क्या होगा? Ma'am, they would commit crimes and they तो would देखो not. अफगानिस्तान में अब क्या हो रहा है, स्कूल वगैरह ढंग से नहीं चल रहे, तो बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है? तो यही है ना, इफेक्ट होगा उनका, सोशल इम्प्लीकेशन हो जाएंगे ना, सोसाइटी पे भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया अब आपको पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है? मैम implication मतलब complication इम्प्लीकेशन ऐसा। मींस उसकी इम्प्लीकेशन, उसकी कॉम्प्लिकेशन, इम्प्लीकेशन। एक मिनट मैं इसको देख ही देती हूँ, इसको कैसे बताना है आपको आंसर। what it would imply, what implication it would have? Implication would be implication. Okay. The possible effects of an action or a decision. ठीक है? Implication, इसके effects के लिए implications word है. Okay? Okay. हाँ, so इसकी implications है। अब फ्यूचर के बारे में बात करनी है। फ्यूचर को मैंने ना 2 पैरास में कर दिया है, क्योंकि ये एस्से का मैं आपसे तभी डिस्कस भी कर रही हूँ, ये डिफिकल्ट एस्से था, बच्चों को ना मुश्किल लगता है इस तरह का एस्से। तो जो फ्यूचर इफेक्ट है, देखो अगर सरकार ने उस कंट्री की सरकार ने जो करंट सिनेरियो को अच्छे से हैंडल कर लिया, तो फ्यूचर इम्प्लीकेशन ब्राइट हो जाएगी। समझ आ गया? Yes, और ma'am. अगर उन्होंने करंट को अच्छे से मैनेज नहीं करा, तो वो जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी अच्छी, उनको हेल्थ केयर नहीं मिलेगी अच्छी, तो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस ग्रिम हो जाएंगे, बैड हो जाएंगे। समझ आ गया पॉइंट? तो मैंने 2 पैरे बना दिए और मैंने ऐसे लिख दिया, if the government does careful management of such a situation, for instance by providing good education and health facilities, then the future outcome could be quite positive. The long-term result would be that the education and health infrastructure would be well developed, the society would be younger and more vibrant, the culture of those countries would be more fast-paced than the traditional culture. तो अच्छा है ना सारा कुछ? अगर प्रेजेंट सरकार ने अच्छा हैंडल कर लिया, फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिंपल सी बात है, लिख लोगे अब ऐसे में? Yes, ma'am. However,
In case the present time is not managed nicely, then the future effect would be different, as there would be more people within the country needing employment. ज़्यादा लोग हो जाएंगे जिनको नौकरियां चाहिए. Then there might rise the problem of unemployment. Unemployment invariably leads to petty crime and violence. समझ गए? Yes, ma'am. और conclusion में फिर मैंने लिख दिया, summing up, the long-term effects of having more young people depends on how the situation is handled today. If handled well, the culture and lifestyle of these countries would be transformed. If the population would be younger, fresh opportunities and challenges would both be on the way. The trend would cause multiple possible effects, and these countries should strengthen the education and health infrastructure to overcome its negative. थोड़ा लंबा conclusion बन गया क्योंकि उसी को देना पड़ा कि अगर आज अच्छा मैनेज करेंगे तो फ्यूचर अच्छा है. तो दोबारा मैंने वो नहीं लिखा कि खराब मैनेज करा तो खराब है. That is understood. ठीक है? From that. Yes. Ma'am, this essay is like, you can say, question answer sort of, जैसे हम लोग करते हैं. वही है. हाँ, it is a short question answer. देखो. Yes. It is a follow up question जिसको आपने एग्जामिनर ने आपको 2 मिनट दे दिया, बोलते जाओ इस पे. आप सोच लो वो है. Yes, ma'am, it is looking that way. It is that basically what are direct question essays? They will ask you a question, they want you to answer it. Okay? अब मैंने intro छोटी करी है, and this essay has become how many words? अभी भी कोई ऐसा छोटा नहीं होगा. 307 वर्ड्स हैं, तो कंक्लूजन और भी छोटी कर दोगे तो भी आपका 250 से ज्यादा का essay है. ठीक है? Okay, ma'am. और एक दो मैंने और अंडरलाइन करे हैं जो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एसेस करा रही हूँ. फैमिली मील का essay है 296. Okay. When families have a meal together, जब families इकट्ठे खाना खाती है, it is considered social activity. ये social activity मानी जाती है. ठीक है? What are the advantages of a family meal? अब family meal के क्या advantages है? आप घर में खाना खाते हो इकट्ठे family मिलके, उसके फायदे पूछे हैं. आजकल ये trend जो है ना खत्म हो रहा है. Do you think eating together is important to people in your country? क्या अब ये direct question आ गया? ठीक है? Yes, ma'am. दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है. बस एक तरह से जो ही आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं यही बोलती थी, बस इसका आंसर दे दो कि आपने ये इस दोनों के आंसर देने हैं इंट्रो में, और एग्जामिनर को इम्प्लाई कर देना. इम्प्लीकेशन आपकी इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए कि आगे क्या आने वाला है. Okay, ma'am. ठीक है? You have to imply that what you're going to write. If you can do that well, your essay is well handled, and there is nothing different in this essay that you should worry about. ओके? Okay, ma'am. हाँ. अब इसकी देखो हमने कैसे लिखे है. ये ना जब क्यू कार्ड वो वाले हो ना कि a meal you enjoyed है आजकल, ये वाला क्यू कार्ड, a meal you enjoyed, a dinner you had with your friends, कुछ ऐसा. अगर ये क्यू कार्ड है तो ये ऐसे गेस वर्क है. ओके? Everything, reading or essays or letters, it's kind of a preparation for your speaking Very exam. good. Yes, exactly, Juhi. That's it. Okay. If you study well for your writing, you're also doing your speaking nicely because Ma'am, you have things to say. Listening helps in speaking, what I suppose. Yes. And at the same time, reading helps in writing. Yes. Because ma'am, I have seen like अगर reading में जो इसमें जो words आते हैं, जो tough words मुझे लगते हैं, वो कई बार मैंने listening में सुने हैं. ऐसे मुझे वो पहले समझ में नहीं आए थे because they were new to me. But मैंने क्योंकि उनको like reading में कर लिए थे या उनकी meaning ढूंढी थी, तो I found them very easy to understand the entire conversation. Thank you so much, Juhi. आपके ये जो words है ना बहुत बच्चों को motivate करेंगे कि listening जो मैं बोलती हूँ ना, एक ही listening को 4-4 5 बार सुनो for your ear training, तो उनको लगता है मैम ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला. जब आप listening को बार-बार सुनते हो ear training के लिए, what it means is that each and every word Habitual. falls on your eardrum like a bombshell. तो फिर आपको हर word समझ भी आने लग जाता है. It becomes part of your vocabulary also. And Juhi, आपने आज ये बात बोल के मेरे मन में चल रहा था उसको reinforce कर दिया है that listening is also improving your vocabulary.
The main thing is we get habitual. Yes, yes. Thank And that is how you have to work hard and get good band score, and then your dreams will be fulfilled, accomplished. मेरा पता है इतना मन करता है जितने बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ सब मुझे हैप्पी रिपोर्ट दे जब उनका रिजल्ट आए. आई फील सो हैप्पी. आई डोंट नो नथिंग एल्स. मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना उनके बैड स्कोर का, नॉट एट ऑल. मैं लेती भी नहीं हूँ. आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट इट्स you have worked hard, it's your bad score. We guide all the students. और मैं तो ये कहती हूँ मैं स्टूडेंट्स के सामने अपने खराब ऐसे भी आपके साथ चेक करती हूँ, कुछ गड़बड़ होती है उसको भी चेक करती हूँ. तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं that I, but you know you are somebody is there to tell you कि हाँ ये ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो. इतना ही बहुत होता है. अपने बच्चों को पेरेंट्स भी बताते हैं ना ऐसे करो वो बहुत होता है ना. बच्चे नहीं करना है ना. अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड. मैंने थोड़ी हार्ड वर्क करना है. मेरे पढ़ाने से आपके बैंड नहीं आने वाले, आपके पढ़ने से बैंड आने वाले, आपकी हार्ड वर्क से बैंड आने वाले. ये समझ आ गई आपको बात? दिस इज इट. ओके, Yes. इट इज ऑल योर एफर्ट व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम. मैम लास्ट टाइम आपने स्पीकिंग में एक वर्ड करवाया था सेल्डमली, उसका मीनिंग होता है रेयर. तो रीडिंग में पता है कि पैसेज में सेल्डमली था और क्वेश्चन में रेयर था, तो मैं उसको रिलेट कर पाया. सेल्डमली तो कोई वर्ड नहीं है, सेल्डम है. हाँ वही सेल्डम, और हाँ, क्वेश्चन में हाँ. रेयर था. ऑफनली भी कोई वर्ड नहीं है. ऑफनली बच्चे यूज करते हैं, ऑफनली भी कोई वर्ड नहीं है. ऑफन है. सेल्डम ऑफन. सेल्डम होता है बहुत कम, ऑफन होता है काफी ज्यादा. हाँ सेल्डम लिस्निंग में आया होगा तो आपको आ गया ना वर्ड. हाँ रेयर करके. अब इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ फैमिली मील एंड डू यू थिंक ईटिंग टुगेदर. अब मेरी इंट्रोडक्शन देखो. इट इज इररिफ्यूटेबल दैट ईटिंग टुगेदर इज अ सोशल एक्टिविटी. Sharing dinner together gives everyone a sense of identity. It can help ease day-to-day conflicts as well as establish traditions and memories that can last a lifetime. Eating together is definitely significant to people of my country, India. आंसर हो गए दोनों क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में. एग्जामिनर को बता दिया कि मेरे को ऐसे समझ आ गया और मैं उसी लाइन पे हूँ. मेरी रेलगाड़ी जो मेरी रेलगाड़ी है वो अपनी पटरी के ऊपर ही भाग रही है, नीचे नहीं उतरी. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. हाँ, फिर अब पहले पैरे में एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग टुगेदर है. आई शेयर दिस ऐसे आप खुद पढ़ लोगे ना. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज ऑफ ईटिंग टुगेदर इज दैट इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. फिर सेकेंडली, family meal time is the perfect opportunity to teach appropriate table manners, etiquette and social skills. मैं आज आपसे एक बात शेयर करती हूँ. मेरे बचपन की बात है. मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे. ठीक है. इनकम वाज वेरी लिमिटेड जो घर में आ रही थी. तो जब जिस दिन पे मिलती थी ना मम्मी पापा को, तो पापा एक डिनर हमें बाहर कराते थे होटल में. कहते थे आज चलते हैं, बाद में पैसे खत्म हो जाएंगे फिर हम ले जा नहीं पाएंगे. तो उसी दिन ले जाते थे. और वहां जाके जो टेबल मैनर्स हैं, ये ऐसे बैठना है, ऐसे उठना होता है, चेयर को घड़ीसना नहीं होता, ये बातें हमें पापा सिखाते थे. ठीक है. नाइफ फोक यूज करना और चीजें. बाद में वो जो लेमन वाला वो जो पानी आता है वॉश करने के लिए, उसका सब सिखाते थे वो हमें. तो ये सब चीजें मतलब जो ये टेबल मैनर्स है, ये एटिकेट्स है, ये जो स्किल्स हैं, ये एक दिन महीने में लेके जाते थे. और ये बहुत पुरानी बात है. मैं आई वॉज बॉर्न इन 60 एंड मतलब अब ये 1970 उसके आसपास की बात है जहाँ से मुझे याद है. तो ये फैमिली मील एक टाइम होता है जब बच्चों को आप ये चीजें सिखा सकते हो. ठीक है. एंड व्हाट इज मोर मील्स प्रेफर्ड एंड ईटन एट होम आर यूजुअली मोर न्यूट्रिशियस. न्यूट्रिशन एंड हेल्दी वाली भी बात कर लो. और फिर एक चीज और, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, ये वाला पॉइंट आपको अपने आप स्ट्राइक नहीं करेगा वहां पे, पर ये फैक्ट है, ये रिसर्च भी की गई है कि जो फैमिलीज एक खाना इकट्ठा हफ्ते में 4 या 5 खाने इकट्ठे खाते हैं, 2 और fewer मतलब फ्रीक्वेंट फैमिली 5 और मोर अ वीक, जो फैमिलीज 5 या मोर खाने इकट्ठे टेबल पे बैठ के खाते हैं, उन फैमिलीज में बच्चों में लोअर रेट्स ऑफ स्मोकिंग, drinking and illegal drug use है pre-teens or teenagers when compared to families exactly. that eat together 2 or few times a week. ये वाला point आपके लिए मैंने आज आपको साथ में पढ़ा दिया है. Now you can write that in your essay. पर अगर आपको ऐसे कोई point नहीं भी आते तो आपके 2 पैरे वाले point तो आपको समझ आ ही गए थे पहले. अब ये वाला भी कर लेना. ये essay important essay है, बहुत बार देखा गया है.
ओके चल, तो ये अब आपको, ये आप पढ़ लोगे, आपको आ जाएंगे बाकी, ठीक है पॉइंट्स। फिर मैंने अपनी कंट्री का भी एक पैरा बना दिया है। मोस्ट पीपल डू वैल्यू शेयर्ड मील टाइम, हाउएवर द फास्ट पेस्ड लाइफ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल कल्चर इज टेकिंग सम अवे फ्रॉम दिस कस्टम। कुछ लोगों को इससे, क्योंकि पता है क्या, जो फास्ट फूड है ना वो अकेले खाया जाता है, बच्चे अपना अपना लेते हैं, पिज्जा ऑर्डर किया, बर्गर ऑर्डर किया, अपने कमरे में बैठे टीवी के सामने और खा लिया। तो फैमिली मील की जो बात है ना, ये कम होती जा रही है, ठीक है। पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वापस फैमिली मील को वापस अपना इसको इम्पोर्टेंस देनी है शुरू हो गई है, ठीक है। एंड दे आर डाउन शिफ्टिंग, ये टर्म भी मैं बहुत यूज करती हूँ ऐसे में। डाउन शिफ्टिंग का मतलब है नीचे को शिफ्ट करना, जो आपको वर्ड ही समझा रहा है ये डाउन शिफ्टिंग। हम ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ना लाइफ में। अब वो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं, वो कहते हैं हमने बहुत ऊपर जा लिया है, अब उम्र भी हो गई है, अब यहाँ बस दिस इज इट, और ऊपर नहीं जाना। तो उसी को डाउन शिफ्टिंग कहते हैं। मतलब दे रियलाइज कि अब बस बहुत हो गया, अब अपने आप को टाइम देना, अपनी फैमिली को टाइम देना। अब इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज से एक दो डेकेड्स पीछे चल रही है। यहाँ पे भी वो कल्चर आ रहा है, शुरू हो रहा है, और ज्यादा शुरू हो जाएगा। वहां बहुत कॉमन हो गया है, यहाँ भी धीरे धीरे कॉमन हो जाएगा कि अब बस बहुत होगी कमाई, अब आराम से बैठो और अपना फैमिली को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। समझ आ गया ये पॉइंट, डाउन शिफ्टिंग का मतलब। फैमिली एक उस ऐसे में भी ये वर्ड यूज कर सकते हो जिसमें है कि फ्यू पीपल अचीव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है, वो रहा उस ऐसे में भी। So to conclude, eating together is definitely an important social activity. That is why it has been said that the family that eats together stays together. ठीक है, वैसे ये एक quotation है, the family that prays together stays together. तो मैंने eats together stays together कर दिया उसका। This is written by me. कर सकते हो ऐसे थोड़ी बहुत changes, quotation बना सकते हो आप भी। जो बड़े लोगों ने बनाई हुई है quotations, वो ऐसे ही चलती है ना, किसी ने कह दिया, वो अच्छा लगा, कोटेशन बन गई, ठीक है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम, एकेडमिक एसेज और जीटी एसेज में कोई डिफरेंस है इन वे ऑफ राइटिंग और एनीथिंग? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, सिर्फ ये डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। उनके एसेज में ना, जो उनको पास्ट में आए हुए हैं, मैंने उनकी बुक में कंपाइल कर दी है इन जीटी। तो हाँ, और वही रिपीट हो रहे हैं। वो जीटी का बैंक है, उसी में से ऐसे उठा के डाल देते हैं, और ये एकेडमिक का है। पर अभी पीछे एक दो ये जो एंटी सोसाइटी वे वाला इससे है ना, वो जीटी में आ गया, उनकी बुक में था नहीं, मैंने बाद में फिर ऐड करा, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉमन टॉपिक्स है फैमिली मील का, ये जीटी को आ सकता है ना, इसमें कोई टेक्निकल बात है? नो मैम, ये तो ये ऐसे तो आ सकते हैं। और वैसे भी मैं बच्चों को कहती हूँ कि अगर आप एकेडमिक वाले ऐसे भी पढ़ रहे हो, आप अपनी राइटिंग के वे में चलो, आप सोचो कि आपको ये नहीं आने वाला, पर स्पीकिंग में तो आपको बेटर हो जाएंगे ना आइडियाज। यस मैम, अब हमारा कंटेंट फ्लरिश होता है स्पीकिंग में, वी कैन यूज इट एनीवेयर। यस एंड योर वर्ड्स आर रियली हेल्पिंग मी कन्विंस सम स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि मैम एकेडमिक के पढ़ा रहे हैं तो हमारे को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, या दे हेल्पिंग मी। ओके, एक ऐसे मैं और करा देती हूँ, ये वाला भी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है। ये मैंने अभी थोड़ा सा शायद रीराइट कर रहा है। ओके नहीं, ये पहले, हाँ, ये वाला मैंने थोड़ा सा चेंज करा है बुक वाले से ऐसे। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे। Some scientists believe that studying the behavior of 3-year-old children, ये nature versus nurture topic कैसे है? Nature versus nurture. Nature nurture पता है क्या होता है? Nature is genes, what you get in genes, DNA from your parents, and nurture is the परवरिश or the external influences. Okay? तो ये नेचर वर्सेस नर्चर ऐसे है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 ऐसे हैं, बुक में आ जाता है ऐसे, और ये आप अच्छे से कर लेना टॉपिक, ठीक है। यस मैम, आपने बहुत अच्छे से वीडियो में बताया मैम, ये टॉपिक 2 वीडियो में। हाँ, है ना। जब मैं अब मेरे को 1.25 साल हो गया, सारे टॉपिक्स रिपीट हो चुके हैं। कई बार मैंने कोई ऐसे उठा के अच्छे से समझा दिया है, कई बार कोई, तो ये मैंने अच्छे से कराए हुए हैं, सारी बुक करा चुकी हूँ मैं। अगर पुराने वीडियोस आप ढूंढोगे ना यूट्यूब के, तो ऑलमोस्ट सभी एसेस डिस्कस हो चुके हैं।
Okay. Some scientists believe that studying the behavior of 3-year-old children can tell which children would grow up to be criminals. 3 साल के बच्चे को देख के बता दो ये बड़ा होके डाकू बनेगा, ये तो पक्का चोर बनेगा, ठीक है? तो ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, इट इज बिलीव बाय सम साइंटिस्ट दैट, ऐसे करके आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हो, ठीक है? अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आंसर इन द एसे? टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में, इज क्राइम, क्राइम जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, क्या ये ह्यूमन नेचर का प्रोडक्ट है, मतलब जीन्स का प्रोडक्ट है, मतलब जो आपको देख के पता चल जाएगा कि आपके पैदा होते ही आपके लिए लेबलिंग लग जाएगी कि आपने बड़े होके ये बनना है, और इज इट पॉसिबल टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग अप टू बी क्रिमिनल्स, क्या ये पॉसिबल है कि बच्चों को हम रोक सके बड़े होके क्रिमिनल्स बनने से, क्या ये पॉसिबल है? ओके, ये ऐसे टॉपिक समझ आ गया, नेचर नर्चर वर्ड समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, आपको Yes. पता है मैं गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, तो मैंने बहुत डिलीवरी केसेस करे इन माय लाइफ टाइम, 33 साल मैंने प्रैक्टिस करी है, तो हजारों बच्चे हुए हैं मेरे हाथ से। तो एक ना बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी दादी बैठी थी पास में, दादी, वो बच्चे ने ऐसे उठ के ना ऐसे हाथ करे, ऐसे ऐसे अंगड़ाई सी ली उसने, अब मैं आपको दिखा भी पा रही हूँ बिकॉज माय वीडियोस देयर, ऐसे हाथ करे, तो ऐसे दोनों हाथ ऐसे करे, तो उसके जो लड़के के फादर थे ना, बच्चे के जो लड़का हुआ था उसके फादर जो थे, उनकी ना कपड़े की दुकान थी, तो दादी बोलती है ये कह रहा है मुझे गज पकड़ाओ मैंने कपड़ा मिलना है तो वो अभी हुआ है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ बच्चे को, उसने ऐसे अंगड़ाई ली, तो कहते हैं, कह रहा है मुझे वो मीटर, गज, गज पता है किसको कहते हैं, जिससे कपड़े नहीं मिलते उसको कहते हैं। तो उसके दादी ने ऐसे बोला, मैं कहा हाँ अभी आपको पता चल गया, ये बड़ा होके कपड़ा मिलने उसी दुकान पे बैठने वाला है, ये कुछ और नहीं बनेगा। बट एनीवेज, तो दिस इज द एसे दैट वाज जस्ट टू यू नो ऐड सम ह्यूमर इन द क्लास। हाँ जी, हाँ बोलो। मेरी गल करा दो। Okay, so we will read this essay and see how we have to handle this essay. Okay, I am in the center, so there are बीच में मुझे थोड़ा बहुत उधर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो they are calling me in between. Okay. Okay. Some scientists are of the opinion that hereditary characteristics are responsible for the person's temperament and hence future career. I believe that while genes do play a role, the primary determinant is nurture hyphen education and bringing up. तो nurture की definition मैंने कर दी, मैंने ना introduction थोड़ी change करी है, तो मैंने while sentence लगा दिया, ठीक है? While genes do play a role, I believe that the primary, I believe that यहाँ पे भी किया जा सकता है, while से शुरू करके भी किया जा सकता है। कॉम कर दो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है तेरी को। क्या? इतना किससे पर मजा आ रहा है? कौन बोल रहा है ये, जूही? No ma'am, I'm not saying, I don't know. अच्छा, मेरी क्लास में मजा आ रहा है तो मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट लूंगी अगर क्लास में मजा आ रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे बोर हो जाते हैं। ओके, so some scientists are of the opinion that hereditary characteristics are responsible for the person's temperament and hence future career, while genes do play a role. While genes is nurture hereditary characteristics के लिए मैंने genes की बात कर दी, while genes do play a role, I believe. हाँ, the primary determinant is nurture, which is education and bringing up. ये समझ आ गई इंट्रोडक्शन। अब एक पैरा, why I believe that nurture plays a more crucial role, फिर मैंने उसके लिए many reasons डाले हैं, फिर मैंने बता दिया कि नर्चर की वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी और बिहेवियर जो है वो चेंज किया जा सकता है। किसी भी बच्चे को एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पाला जाए तो उसमें अच्छी हैबिट्स डेवलप की जा सकती हैं। ये समझ आ गया आपको पॉइंट? Yes, Furthermore, जो बच्चे हैं, children can rise above the gene pool and rise to great heights. Even if a child is born to criminal parents, brought up away, okay? Even if a child is born to criminal parents and brought up away from that environment,
and provided quality education, he will not grow up to be a criminal. ठीक है, तो ये सारा आप देख लेना. Admittedly मैंने ये कह दिया, while genes do play a role, there are many examples of children born in families of criminal growing up to be criminals. उसमें भी मैंने ये कह दिया वो इसलिए criminals हैं क्योंकि उनको ना पॉजिटिव रोल मॉडल्स नहीं मिलते अपने आसपास. पॉजिटिव रोल मॉडल्स नहीं मिलते, क्रिमिनल फैमिली में बॉर्न हुए, वहां क्राइम ही हो रहा है सुबह दोपहर शाम. अब वो उनके घर में वो क्या सीखेंगे? दे विल ग्रो अप टू बी क्रिमिनल्स ऑब्वियसली. ठीक है, ये मैंने इसका ये रीजन दिया है, जीन्स रीजन नहीं है. तो मैंने अपना पूरा मैंने वो कर दिया कि वाइल जीन्स थोड़ा सा पार्ट प्ले करते हैं, पर प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या है किसी के भी नेचर का? दैट इज द नर्चर, द एजुकेशन एंड द ब्रिंगिंग अप. समझ आ गया अब ऐसे? यस. To sum up, the role of nature in determining the behavior of a child cannot be ignored, but it is not the way the child, but it is the way the child is nurtured that shapes the future behavior and personality, thus ascertaining that it is possible to prevent children from growing up to be criminals. So today we have dealt with the direct question essays, and I hope your all your points about the direct questions have been answered, and now you are not afraid of getting a direct question in the essay, in the exam. No. You'll be able to handle it. Yes, ma'am. Okay, so I'll be sharing. मैंने बीच में से ऐसे लिए है, पर मैंने देखा कई बच्चों के पास है नहीं बुक वगैरह, तो मैं ना ये आपको ये इकट्ठे ऐसे शेयर कर दूंगी कुछ फाइल में, आपको पूरा हफ्ता पढ़ने के लिए हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आप ये मैं शेयर कर दूंगी आपसे अभी. बाकी अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा काम भी है और हो भी गया टाइम अब. मैम आई just need to ask the meaning of one word or phrase you can say. मैम आपने डिस्कस करा है, बट इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि उसकी वजह से आई एम अनेबल टू राइट ऑन इट. नेचर मींस जीन्स एंड नर्चर मींस ब्रिंगिंग अप. नो मैम इस टॉपिक से नहीं, दूसरा टॉपिक है मैम. कंजेशन टैक्स की डेफिनेशन. कंजेशन टैक्स है सड़कों पे जो ज्यादा, जब पीक आवर्स होते हैं ना उस टाइम सड़कों पे ज्यादा रश होता है, तो उस टाइम ज्यादा पे करना पड़े लोगों को सड़क को यूज करने के लिए, उसको कंजेशन टैक्स कहते हैं. तो उस सड़क पे जाएंगे तो उन लोगों को पे करना पड़ेगा. उस टाइम में जैसे टोल्स नहीं बने हुए जगह जगह, अब वो टोल्स में अगर कोई सुबह 8 से 10 के बीच में जा रहा है तो टोल टैक्स ज्यादा है, आफ्टर दैट टाइम टोल टैक्स कम है. ओके समझ गए? तो उसको कंजेशन टैक्स कह दिया ना, क्योंकि वो कंजेशन वाले आवर्स हैं. ओके, उस पर्टिकुलर रोड के ओके. ठीक है, चलो ओके बेटे, बाय. एक्सक्यूज मी मैम. यस, मैं ग्राफ का क्वेश्चन था. हाँ, 39 का. आप मेरे को पर्सनल मैसेज अपने ग्रुप में मैसेज कर दो ग्राफ का. ओके ओके मैम. आंसर दे देती हूँ. ओके, बाय.